دہلی یونیورسٹی میں دوسری مرتبہ ہے. پہلی مرتبہ آگرہ یونیورسٹی کی اور دوسری مرتبہ آج احمد فاروقی کے زمانے میں یہ خطبات کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور عثمان غنی کے زمانے میں جاری ہے. حضرت ابو بکر صاحب ایک ہفتہ بعد علی گڑھ گئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہاں خطبات کا سلسلہ جاری ہے, جماعت صاحب پڑھیں گے, اکیلے آپ کو بھی جماعت ہوگا تو آپ چاہیں بات بھی چل سکتے ہیں. میں نے پوچھا ان سے موضوع کیا ہے خطبے کا, تو انہوں نے کلاسیکی شاعری کی شناخت بتایا. مجھے اندازہ ہوا کہ دریا سے پانی کافی دور چلتا ہے. اگر بات کیا غالب کی شاعری کی خصوصیات ان پر بات ہونے کے بجائے اس موضوع کو ہونے جا رہا ہے جس پہ کچھ بھی ایک حق کہنے کے پہلے اسے سمجھنا پڑے گا. چنانچہ اگرچہ میں نے ابو بکر کے کہنے سے یہ تیار کر لیا تھا کہ میں چلوں گا, لیکن کہوں گا کیا. کلاسیکی زبان انگریزی میں مدت سے موجود فیصلے آخری مصنف اب تک پیریڈ تھا اور آخری مضمون ابھی تک نہیں پہلے مرنے کے چند روز پہلے پیریڈ کا مضمون تھا واٹ از کلاسک. میں اس سوال سے گزر رہا ہوں کلاسک کیا ہے, اور آپ یقین کیجیے کہ کلاسک پر جتنے مضامین انگریزی اور اردو میں پڑھے کسی نے اس موضوع کی تاریخ نہیں بتائی. ایک جو سب سے دلچسپ اور سب سے پریشان کن تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اچھی تحریر, ایک بیسٹ تحریر پورے مکالمے کی اس صنف میں جتنی بھی تحریریں لکھی ہیں ان کے بیسٹ میں شامل ہیں. اب میں سمجھ نہیں سکتا کہ کلاسیکی مضمون سب سے اچھی تحریر کا نام ہے, اور سب سے اچھی تحریر وہ ہوگی جو سب سے اچھی تحریروں میں شامل ہے. کیا آپ اس کے معنی سمجھ سکتے ہیں کہ تجزیہ نگار کی حیثیت سے میرا اندازہ یہ ہے کہ کم سے کم اس سے کوئی معنی نہیں نکلتے, صرف ایک لفظ یا ایک اصطلاح کو دیر تک کسی معنی میں استعمال کرنے سے اس اصطلاح کے معنی نہیں ہوتے. سو میں کلاسک کی تعلیم وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے ڈاکٹر جمال نے اپنے اس خطبے کو انتہا کی. اچھی شاعری تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے, اچھی سے اچھی شاعری کہہ سکتا ہے, لیکن ایک صفت یہ ہے کہ معاشرے کا ایک تہذیبی تصور ہے. ہر معاشرے کا ایک تہذیبی تصور ہوتا ہے. اس زمانے میں کلاسیکی شاعری کا بھی تھا. کلاسیکی شاعری میں سب سے بنیادی تصور وہ تھا جو قاضی جمال نے پیش کیا کہ خدا ایک قادر ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ تعبیر کرنے میں خدا کی یہ ہوا انہوں نے خدا کے ہونے کا ثبوت یہ بتایا کہ موت آتی ہے, اور موت آتی ہے یہ ایک صفت ہے, یہ اصل صفت
नहीं है, क्योंकि सिर्फ मौत नहीं आती, खुदा वो कादिर मुतलक है। खुदा सिर्फ मौत नहीं देता, कादिर मुतलक है। दुनिया के हर काम को जब चाहे जैसे चाहे कर सकता है और करता है, यहाँ तक कि उसे सबब की जरूरत नहीं पड़ती। अंग्रेजों ने इस मुल्क में आके जो सबसे पहला हमला किया है, जो सबसे पहली नफी की है, वो बदल की ही की थी। हर चीज़ की करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ये शायरी मरूरियात है, मोहम्मद है, हुजूर है। किसी में परी चली आ रही है, किसी में कोई चला आ रहा है, किसी में मुर्दा जिंदा हो जा रहा है, किसी में एक जिंदा आदमी मर जा रहा है वगैरह। तो ये जो मौजूदात बताएंगे, उन्हें अंग्रेजों ने सही समझा था कि हमारी शायरी का तसव्वुर, असल तसव्वुर खुदा कायनात की हिकमत पर है, हिकमत जो बेसबब होती है। और इसलिए उसने सबसे पहले ही आते ही ये बात शुरू की कि इनकी शायरी खुराफात का दफ्तर है। खुराफात यानी परी और जिन्न के किस्से, बना वगैरह। लेकिन असल बात यह है कि वही हमारी असास है कि हमारा अकीदा ये है कि खुदा कादिर मुतलक है, सब चीज़ों की असल है, सब चीज़ों की बुनियाद है। इस तरह से, और ये झूठ इतनी जोर से बोला गया है कि हमारे तमाम बड़े लोगों को इसका ख्याल हुआ कि हाँ ये सही कहता है। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए जो करता है खुदा करता है। और खुदा एक कादिर मुतलक से हमारा अकीदा यकीन है। इसलिए हमारी क्लासिकी शायरी या जितनी भी शायरी है, उसकी बुनियाद इस पर है कि हम एक कादिर मुतलक के कायल हैं, जो दुनिया में होने वाले तमाम काम का सबब है। इसका जो नतीजा निकलता है वो बगैर सबब है। ये बुनियादी तस्वुर है जो आप हैं। और मेरे नज़दीक बुनियादी तस्वुर से ही हमारे पहले अकीदे की बुनियाद निकली कि हमारे यहाँ खुदा कादिर मुतलक है, बिला सबब, मतलब खुद बयकून का सबब है, कर सकता है और करता है। क्लासिकी बदल की पहली और बुनियादी सिफत हमारे खुदा का तसव्वुर है। हमारे माशरे में उस यकीन का, उस एतमाद का तसव्वुर है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। और एक इस तसव्वुर से हमने शायरी का जो तसव्वुर निकाला है वो उसके इंज़िबात का है। यानी मतलब जो करता है वो मुंज़बित है, फनी एतबार से मुंज़बित है। उसमें कोई एक ही पढ़ाया जाता है न पढ़ाया जाता है, न वो अक़ीदे के मुताबिक हमारे तरीके को महसूस होता है और न उसका इंज़िबात टूटता है। ये दूसरी सिफत है। और तीसरी सिफत उसकी उस सिफत के बयान करने के तय में जो इखलाक़ी यानी इसीलिए गैर इखलाक़ी ताहीर अगर हमारी शायरी से नुमायाँ होती है तो वो शायरी को क्लासिकी नहीं कहते। चनांचे आपने कभी किसी मदाहिया शायरी को इखलाक़ी शायरी नहीं कहा। इस तरह क्लासिकी शायरी की तीन बुनियादी खसूसियात हैं। पहली, अपने अक़ीदे से की बुनियाद खुदा वजूद सबब हर नतीजे का
शख्सियत उसकी फनी है तो वो इंज़िबात बहुत मुंज़वित होती है। और तीसरी सिफत इस इंज़िबाती निज़ाम यानी शेर से जो नमूना निकलता है वो उन उसूलों की पाबंदी का पाबंद है जिन्हें हम अखलाकी रवायत की रवायत की तोसी कर सकते हैं। वही रवायत वही शेख क्लासिकी वक्त जिसकी नवैयत अखलाकी बस ये तीन सिफत अगर आप संभालें और उतने शेर याद नहीं जितने प्रोफेसर काजी जमाल को याद है तो यकीनन कोई बहुत बड़ा नुकसान है। याद रखिए कि मिसालें तो आप कहीं भी तलाश कर सकते हैं। हर अच्छे शायर ने क्लासिकी शेर कहे या कहने की कोशिश की है और उसकी बुनियाद उसके असास अल्लाह ताला को रखा है और उसके होने से तमाम तरह की तमाम तरह माल ममाल सब के साथ मायने की तरह इसके और जैसे ही वो बात अमल में आता है शेर में लगता है तो शेर में उसका असर इस्लाम है। ये तीन सिफात हैं जो जिनसे क्लासिकी होती है और अगर ये तीन नहीं है तो बड़ा से बड़ा आता है। ये बात नहीं कि वो यही कहता है कि बहुत अच्छी शायरी है और अच्छी शायरी के क्लास में भी बहुत अच्छी है। ये कोई तारीफ नहीं, ये कोई तारीफ होती नहीं। सही बात ये है मुझे इस तहकीक की तरफ राज किया है। हमारे ज़माने तक तमाम बड़े नक्काद हैं यानी पुराने ज़माने से अब तक तमाम बड़े नक्काद हैं इस वजह से कहा नहीं लेकिन तस्लीम किया है वही शायरी पढ़ी जिसमें अकीदा हो और अकीदा हो एक इंज़िबात का उन सिफात का जिनसे ये शेर होते हैं और अकीदा उन सिफात से पैदा होने वाले इस्लामी रवायत का जिनका ये शायर तर्जुमा कर रहा है। और अगर ये तीन सिफतें मौजूद हैं तो शायद क्लासिकल शायर है और नहीं है तो शायद क्लासिकल नहीं है। गैर तारीफ ये कहना कि हम इसको क्लासिकी शायरी नहीं मानते ये तनकीद नहीं। सवाल ये है कि अगर ये आप नहीं मानते तो क्लासिकी शायरी क्यों नहीं मानते? और जब इस सवाल का जवाब देने आप तवज्जो करें गौर करें मेहनत करें तो नतीजा आखिर में यही निकलेगा कि जिस शायरी एक तस्वुर इलाह है मुस्लिम माशरे में ख़ास तौर से जिसमें हमारे माशरे में एक तस्वुर इलाह है ये इंज़िबात है क्लासिकी हिकमत है तब वो शायरी क्लासिकी और ये मैं बिला वजह नहीं कहता हमारी क्लासिकी इन तीनों सिफात का मौजूद होना सबूत है इसका कि अरबी और फारसी उर्दू में यही तीनों